میاں رحیم میاں خان بہاولپور ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں میں سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے۔ زمین تپ کر تنور میں تبدیل ہونے لگی۔ میاں والی کا درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ رحیم میاں خان کا 46، بہاولپور کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان ڈی جی خان اور میاں چنو کا درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ شدید گرمی کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ شہری گھروں میں محدود ہو گئے، سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو کی موجودہ لہر 20 مئی تک جاری رہے گی۔ ملتان میں گرمی کی شدید لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ محکمہ موسمیات نے 15 سے 20 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس دوران درجہ حرارت معمول سے کہیں زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ ملتان میں گرمی کا زور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ محکمہ موسمیات کے ہیٹ ویو الرٹ کے پیش نظر ریسکیو آپریشن آفیسر انجینئر بلال نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور خاص طور پر بچے، بزرگ اور بیمار افراد گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ شہری پانی کا زیادہ استعمال کریں، ہلکے کپڑے پہنیں، سر ڈھانپ کر رکھیں اور ممکنہ حد تک سائے میں رہیں۔ ملتان میں گرمی کی شدید لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ محکمہ موسمیات نے 15 سے 20 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ملتان میں گندم کی قیمت میں اضافہ ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں فی من گندم 2450 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ بیوپاری حضرات کہتے ہیں کہ فلور ملز میں گندم کی کھپت میں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث ریٹ بڑھا ہے۔ ملتان میں گندم کی قیمت میں تیزی آ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں فی من گندم 2450 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ بیوپاری حضرات کا کہنا ہے کہ فلور مل سیکٹر میں گندم کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے گندم ذخیرہ کی وہ فائدے میں رہے۔ فلور ملز میں گندم کی کھپت میں اضافہ ہونے کے باعث ریٹ بڑھا ہے۔ گندم کی قیمت میں مزید اضافہ ہونے کا بھی امکان ہے۔ ملوں کا ریٹ اوپر ہو گیا، پیچھے مہنگی ہو گئی۔ آپ نے کتنے سے بیچنی شروع کی تھی؟ 2100 تک۔ اچھا، اب 2400 روپے میں بیچ رہے ہیں؟ ہاں جی۔ تو گاہک آ رہے؟ گاہک نہیں آ رہا۔ کی وجہ؟ گاہک کہہ رہے اور رد کرو۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ گندم خریدنے آئے ہیں مگر گندم کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تنخواہ کے انتظار میں تھے، اب تنخواہ ملی تو گندم خریدنے آئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سستی ہو جائے، وہی 2200 روپے ریٹ صحیح تھا، اب یہ 2450 ہو گئی ہے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں لیں نہ لیں، اسی سوچ میں کھڑے ہیں۔ خریداروں کا مزید کہنا تھا کہ چند روز پہلے تک فی من گندم 2000 روپے تک دستیاب تھی، اب گندم 2400 روپے سے زائد قیمت میں فروخت ہو رہی ہے۔ کیمرامین طاہر کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ شہر اولیا میں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ سرکاری نرخوں اور مارکیٹ ریٹ میں بھی کھلا تضاد۔ خود ساختہ مہنگائی پر انتظامیہ نے چپ سادھ لی۔ ادرک کی سرکاری قیمت میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام، سرکاری نرخوں اور مارکیٹ ریٹ میں بھی واضح فرق۔ ضلعی انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام۔ سرکاری نرخ نامہ میں پیاز 22، آلو 40 اور ٹماٹر 24 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں پیاز 40، ٹماٹر 50 اور آلو 60 روپے فی کلو فروخت۔ ادرک کی سرکاری قیمت میں مسلسل اضافہ۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ادرک 600 اور لہسن 220 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ادرک 700 اور لہسن 300 روپے فی کلو فروخت۔ شملہ مرچ 130، بھنڈی 140 اور بینگن 100 روپے فی کلو دستیاب۔ گھیا توری 140، بند گوبھی 120، اروی 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ پھلوں میں خوبانی 600، آلو بخارا 1200 اور سیب 400 روپے فی کلو فروخت۔ چیکو 400، فالسا 200 اور تربوز 50 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ لوکاٹ 350 اور خربوزہ 150 روپے فی کلو، جبکہ کیلے 300 روپے فی درجن ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ ملتان میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی زیر تعمیر بلڈنگ میں تاخیر کیوں؟ ڈائریکٹر انجینئرنگ MTA کی ٹھیکیدار کو وارننگ لیٹر جاری کرنے کی ہدایت۔ رانا سلیم احمد خان کام کی سست روی پر کانٹریکٹر پر برہم۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی زیر تعمیر بلڈنگ میں تاخیر کیوں کی؟ ڈائریکٹر انجینئرنگ MTA کے ٹھیکیدار کو وارننگ لیٹر جاری کرنے کی ہدایت۔ رانا سلیم احمد خان کام کی سست روی پر کانٹریکٹر پر برہم۔ ڈائریکٹر جنرل MTA نے تمام فلورز پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ MTA نے زیر تعمیر بلڈنگ بارے بریفنگ دی۔ ڈائریکٹر جنرل MTA نے ٹھیکیدار کو اگلے ماہ تک کام مکمل کرنے کا پابند کیا۔ لیبر کی تعداد بڑھا کر 2 شفٹوں میں کام کیا جائے۔ ڈائریکٹر جنرل MTA کی جانب سے ایسا کہا گیا۔
जतोई में ग्रेट चौक पर बनाया गया मॉडल मीनार पाकिस्तान करप्शन की नजर। डीसी मुजफ्फरगढ़ मीनार पाकिस्तान का मॉडल देखने पहुंच गई। डीसी की तरफ से ठेकेदार की सरजनिश, मॉडल की असर-ए-नो तामीर का हुक्म दे दिया। 12 लाख से तैयार मॉडल इंतहाई नाकिस मटीरियल से बनाया गया था। गुज़िश्ता शब रात की तारीकी में मीनार पाकिस्तान के मॉडल को उतरवा लिया गया। आपको बताएं कि जतोई में ग्रेट चौक पर बनाया गया मॉडल मीनार पाकिस्तान करप्शन की नजर। डीसी मुजफ्फरगढ़ मीनार पाकिस्तान का मॉडल देखने पहुंच गई। डीसी की तरफ से ठेकेदार की सरजनिश, मॉडल के असर-ए-नो तामीर का हुक्म जारी किया। इंतजामिया का कहना है कि 12 लाख से तैयार मॉडल इंतहाई नाकिस मटीरियल से बनाया गया था। मुल्तान ज़लई और वासा इंतजामी की गफलत या मुबैना नाअहली। कला कोहना कासिम बाग पर एक अरसे से बने क्राउन फेलियर्स का मुरम्मती काम शुरू न किया जा सका। तफरीही मकाम पर क्राउन फेलियर्स का बनना और उनका मुरम्मती काम शुरू न होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुल्तान ज़लई और वासा इंतजामिया शहर में बने क्राउन फेलियर्स की मुरम्मत करने में नाकाम। मेन रोड किला कोना कासिम बाग पर एक साथ 4 क्राउन फेलियर बने हुए हैं। इंतजामिया अभी तक क्राउन फेलियर्स का मुरम्मती काम शुरू नहीं कर सकी। सियाह कहते हैं कि कासिम बाग के बिल्कुल सामने क्राउन फेलियर की मुरम्मत न होना इंतजामिया की गफलत को जाहिर करता है। वो एक हफ्ते से इस क्राउन फेलियर को देख रहे हैं। इधर ग्राउंड फेलियर हुआ है और ये काफी अरसे से इधर ही मौजूद है और मैं तकरीबन 2-4 हफ्ते पहले आया था, उस टाइम भी यही कंडीशन थी रोड की। तो बहुत से लोग इधर से जाते हैं, कोई गिर जाता है, कुछ हो जाता है, यानी कि इस वजह से चोट आ जाती है। ये इनको चाहिए कि इनको सेट करें, मुरम्मत करें। सियाहों का कहना था कि क्राउन फेलियर दूर से तो नजर नहीं आता, मगर यहाँ दरख्त की शाखें काट कर लगाई गई हैं। इंतजामिया ने ना कोई हिफाजती हदायत जारी की हैं और ना कोई बोर्ड लगाया गया है। ये तो काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही है और अपना यहाँ हादसात वगैरह भी होते रहते हैं। रात के टाइम अक्सर लोगों को नज़र नहीं आता, गाड़ियाँ वगैरह, बच्चे वगैरह गिरते हैं, ठीक है ना। तो हुकूमत इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। काफ़ी टाइम से ये ऐसे पड़ा। हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन वगैरह ले और इसको जल्द जल्द ये सही करवाया जाए। क्राउन फेलियर सियाहती मकाम को खूबसूरती में कमी का बाइस है। इंतजामिया जल्द अज जल्द इन क्राउन फेलियर को मुरम्मत करे। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सुलेमान जमीर, रोही, मुल्तान। नौशहरा जदीद के इलाके चक लोहारा के बॉयज हाई स्कूल की इमारत खस्ताहाली का शिकार। इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। तलबा और वालिदैन इंतहाई परेशान हैं। इंतजामिया से इमारत नए सिरे से तामीर करने का मुतालबा कर दिया। नौशहरा जदीद में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चक लोहारा की इमारत खस्ता हाली का शिकार। तलबा की जिंदगियां दाव पर लग गईं। तलबा का कहना है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल चक लोहारा की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इमारत के किसी भी वक्त जमीन बोझ होने का खदशा। हमारे स्कूल के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कभी किसी वक्त भी गिर सकती है। तो फिर हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके पीछे वाशरूम है, तो फिर हम जब वाशरूम जाते हैं तो हम खौफसदा होकर वहाँ से गुजरते हैं। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं वो भी यहाँ से खौफसदा होकर गुजरते हैं। तो फिर हम महकमा बिल्डिंग से गुजारिश करते हैं कि इस बिल्डिंग को दोबारा से तामीर किया जाए। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि चक लोहारा हाई स्कूल की इमारत इंतहाई बोसीदा हो चुकी है। हमारे बच्चों की जान को खतरा है। आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें। मेरी गुजारिश है कि महकमा बिल्डिंग वालों से कि ये बिल्डिंग जो है चक लोहारा में हमारा स्कूल है, यहाँ पे हमारे इलाके के तमाम बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, छोटे बड़े सब। तो बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। यहाँ पे बिल्डिंग को दोबारा सिरे नौ तामीर किया जाए, ये ना हो कभी कहीं हादसा हो जाए। चक लोहारा के मकीनों, तलबा और वालिदैन की जानिब से कमिश्नर बहावलपुर और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर स्कूल की इमारत नए सिरे से तामीर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जुबैर लॉन्ग के साथ मलिक हबीब लॉन्ग, रूही, नौशहरा जदीद। मुल्तान गल्ला मंडी में काली मिर्च की कीमतों में इजाफा। मंडी में काली मिर्च 4,000 रुपए मन महंगी। काली मिर्च 86,000 से बढ़कर 90,000 रुपए फी मन हो गई है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फराज रमजान से। जी फराज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गल्ला मंडी में मौजूद हूँ। बात करते चलें तो आज गल्ला मंडी में मिसाला जात की कीमतों में इजाफा देखने में आया है, जिसमें जो है वो काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च जो है वो 4,000 रुपये मन जो है वो महंगी हो चुकी है। मंडी में पहले 86,000 रुपये मन जो है वो काली मिर्च फरोख्त की जा रही थी, अब जो है वो 4,000 रुपये इजाफे से
90,000 रुपये मन हो चुकी है। और इस हवाले से मजीद बात करते चले तो इस वक्त होलसेल सतह पर जो है वो काली मिर्च 2250 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। लाल मिर्च वो वही चीज़ है जो हंडिया में जो है वो हर हांडी में इस्तेमाल होती है और लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं और जायके के तौर पर भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। काली मिर्च महंगी होने की वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त गला मंडी में मौजूद हैं, दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाईजान बताइएगा, काली मिर्च क्यों इतनी महंगी होती जा रही है? 4,000 रुपये मन की बहुत बड़ा इजाफा है, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ना काली मिर्च इसके शॉर्टेज की और डिमांड की वजह से जो है ना ये महंगी हुई है। और आगे जो है ना ईद का बाज़ार है और मसाला जात में काली मिर्च जो है ना एक अहम किरदार अदा करती है, तो इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। और दूसरा जो है पिछले दिनों में जो जंग की सूरत हाल बनी थी तो जिसकी वजह से रस्तों की बंदिश हुई थी और माल की शॉर्टेज हुई थी, तो ये जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो है ना वहाँ से माल लेकर नहीं आ पा रही थी, तो डबल किराया जो है ना हमें भरना पड़ रहा था, जिसकी वजह से माल की जो है ना 4,000 रुपये मन की तेज़ी आई है। अच्छा ये बताइएगा, ये काली मिर्च आती कहाँ से और ये कहाँ की पैदावार? भाईजान ये मुख्तलिफ जो है ना ममालिक से आती है, जैसे ब्राज़ील है और इंडिया से भी काली मिर्च आती है, वियतनाम से भी आती है। तो ब्राज़ील और वियतनाम से ये दो जो है ना ममालिक से जो है ना काली मिर्च से हमें ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, क्योंकि वहाँ की मशहूर है और इसकी क्वालिटी भी जो है ना अच्छी जो है ना बताई जाती है जी, ब्राज़ील में और वियतनाम से। इस वक्त आप कौन सी क्वालिटी के बेच रहे हैं? हमारे पास तो जो है ना दोनों ब्रांड हैं। एक जो है ना जो वियतनाम से आती है तो छरा मिर्च भी बोला जाता है, क्योंकि वो साइज़ में मोटी भी होती है और क्वालिटी में अच्छी भी होती है। तो बाकी है कि साबुत भी इस्तेमाल होती है, गरम मसाले में भी इस्तेमाल होती है और इसका पाउडर भी, इसका जो है ना पाउडर करके ना वो भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो है ना गरम मसाले में जो है ना काली मिर्च के अलावा जीरा है, दालचीनी है, लौंग है, ये सब तमाम वैरायटी जो है ना, दालचीनी हो गई, जीरा हो गया, ये सब इस्तेमाल की जाती है। और काली मिर्च का जो है ना इसका अहम किरदार है गरम मसाले में। मिर्च का जो है वो अहम किरदार है। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन आसिफ सिद्दीकी आपको दिखा सके तो इस वक्त ब्राज़ील की और वियतनाम की काली मिर्च जो है वो यहाँ पर गला मंडी में मौजूद है। इंडिया से भी काली मिर्च आती है और जंग बंदी की सूरत हाल की वजह से जो है वो जंग की वजह से काली मिर्च की कीमतों में इजाफा हुआ, रास्ते जो बंद हुए और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से भी जो है वो मंडी में काली मिर्च जो है वो 4,000 रुपये मन जो है वो महंगी हुई है। दुकानदार से बात की है तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो शॉर्टेज की वजह से गला मंडी में जो है वो काली मिर्च महंगी हो चुकी है और जिससे जो है वो 2250 रुपये फी किलो होलसेल सतह पर फरोख्त की जा रही है। जी, फराज आगाह करने के लिए शुक्रिया। मुल्तान वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में रजिस्ट्रार तैनाती का मामला, हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का सिंडिकेट को 30 रोज में दादरसी का हुक्म। मुल्तान वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में रजिस्ट्रार तैनाती का मामला है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का सिंडिकेट को 30 रोज में दादरसी का हुक्म। कमेटी ने पिटिशनर ताहिरा अख्तर को रजिस्ट्रार के लिए मौजू करार दिया। सिंडिकेट ने कमेटी सिफारिशात मुस्तरद करके केस वापस भेज दिया। वकील का मौक़िफ़ है कि सिंडिकेट के पास केस रेफर करने का कोई इख्तियार नहीं था। मंजूर नज़र लेक्चरार को गुज़श्ता साल से रजिस्ट्रार का एडिशनल चार्ज दे रखा है। चांसलर ने मौक़िफ़ मुस्तरद किया, हालांकि कानून और शवाहिद हमारे हक में थे। डीपीओ डॉक्टर मोहम्मद रिजवान खान का अलीपुर के कचरे के इलाके का दौरा। डीपीओ ने दराई चौकी, शाहपुर, पतन मकाम सरकी, दराई सिंध का दौरा किया। एएसआई अब्दुल शकूर की बहादुरी पर 25,000 नकद और तारीफी सनद का इनाम। डीपीओ का कहना था कि जवान बहादुरी के साथ खतरनाक डाकुओं से मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस ने डाकुओं का भरपूर तरीके से मुहासा किया हुआ है। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक 2 डाकू पहले ही हलाक हो चुके। डाकुओं का कानून की गिरफ्त में आने तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। राजनपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मेडल्स तकसीम की तकरीब में डीपीओ फारूक अमजद, डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक मौजूद। मेंबरान सूबाई असम्बली अब्दुल अजीज खान दरेश की दीगर की तकरीब में शिरकत। तकरीब में पुलिस गाजियों के सीनों पर मेडल्स लगाए गए। तकरीब में शहादा के वरसा में गोल्ड मेडल तकसीम किए गए। डीपीओ फारूक अमजद ने कहा कि राजनपुर पुलिस बहादुरों में अपनी मिसाल आप है। किला कासिम बाग, दमदमा और महकमे औकाफ मुल्तान के दफ्तर की अपग्रेडेशन का दूसरा मरहला। अपग्रेडेशन के लिए 30 करोड़ रुपए के फंड जारी। मंसूबे के पहले मरहले के तहत 1 अरब फराहम। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का कहना था कि फंड्स की बरवक्त फराहमी से मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। फिलहाल कासिम फोर्ट के दाखिली दरवाजे और पार्क का काम जारी है।
कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबी का हारूनाबाद का दौरा, डीसी बहावलनगर जुल्फिकार अहमद भून और एसी हारूनाबाद भी हमरा। कमिश्नर बहावलपुर ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। कमिश्नर का THQ अस्पताल का भी दौरा, मरीजों से दरियाफ्त किए मसाइल। कमिश्नर बहावलपुर की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद भी किया गया। DPO मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान की खैरपुर सादात में खुली कचहरी। DPO ने साइलिन की दरख्वास्तें सुनी। ज्यादातर साइलिन की दरख्वास्तें पुलिस के खिलाफ थीं। मुद्दई की दरख्वास्त पर मुहर्रर थाना की सरजनिश कच्चे के इलाके में पुलिस चौकी जल्द बहाल की जाएगी। आपको बताएं कि DPO मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान की खैरपुर सादात में खुली कचहरी। DPO ने साइलिन की दरख्वास्तें सुनी। मुद्दई की दरख्वास्त पर मुहर्रर थाना की सरजनिश की गई।